گرامی السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین، میں انصار عزیز ندوی آج کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کے سامنے بہت ساری خبریں رکھوں گا۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آج سنڈے ہے اور ایک ہی پرائم ٹائم شائع ہوتا ہے، اور باقی ہمارے پیغام فرقان اور ذکر میرے حبیب کا کی جو ویکلی جو ہمارے پروگرام ہوتے ہیں وہ اپلوڈ ہوتے ہیں، دونوں ہو بھی چکے ہیں۔ آپ حضرات اس کے ساتھ ساتھ اس کو بھی دیکھنے کی عادت ڈال لیں، اس لیے کہ اس کو بھی دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ مجھے پوری امید ہے کہ آپ لوگوں کو وہاں پر سیرت کے اعتبار سے، قرآن کی آیات کی تفسیر کے اعتبار سے بہت ساری معلومات اور ایسی معلومات جو وقت کے حساب سے آپ کو ہونی چاہیے وہ وہاں پر آپ کو ملیں گی، اور دوسروں کو بھی شیئر کیجیے گا۔ یہ آپ لوگوں سے مخلصانہ اور مؤدبانہ اپیل ہے کہ ہم اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جب تک پہچانیں گے نہیں، قرآن کریم کی آیات کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کو جب تک سمجھیں گے نہیں، ہم اپنی زندگی کو سیدھی ڈگر پر نہیں ڈال سکتے۔ اس وجہ سے سیدھی بات ہمیشہ سے پہلے دن سے اول دن سے ہی کوشش میں ہے کہ ہم اپنی زندگی کو سیدھی راہ پر ڈال سکیں۔ اس کے لیے قرآن اور سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دونوں پروگراموں کو ہم بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور سنڈے کے دن جو ہے اس کو پبلش کرتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو دیکھ سکیں۔ اور اس کے علاوہ ہم صرف ایک ہی پروگرام ڈیلی رکھتے ہیں تاکہ ہمارا بھی اپنا آخرت کا ذخیرہ بن سکے اور آپ کا بھی۔ بہرکیف آج کی پرائم ٹائم میں جو آپ کے سامنے خبریں رکھ رہا ہوں اس میں بہت ساری الگ الگ خبریں ہیں۔ میسور کا ایک ایڈیٹر نے اپنے ایڈیٹوریل میں، جس کو اداریہ کہتے ہیں، اس میں مسلمانوں کے قتل عام کی اپیل کی ہے۔ میسور کے لوگ سن رہے ہیں، آپ کے گاؤں کے ایک انگریزی اخبار نے آپ کو قتل عام کرنے کے لیے اپنے ایڈیٹوریل میں جگہ دیا ہے۔ وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے وہاں کی تنظیموں کو اور یہاں بنگلور کے لوگوں کو بھی۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری سچی جھوٹی خبریں جو پھیلائی جا رہی ہیں، جو ویڈیوز جو اس وقت وائرل ہو رہی ہیں، ان تمام چیزوں کو یکجا کر کے میں لایا ہوں ہمیشہ کی طرح، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے صحیح اور حقیقت آ سکے۔ میں ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ اور اس کے علاوہ دو بہت ہی افسوسناک خبریں آ رہی ہیں۔ دو اہم ترین علماء کرام کی، دونوں بڑے مدارس سے جڑے ہوئے علماء کرام کے انتقال کی بھی خبر آ رہی ہے۔ میں اس کی بھی تفصیلات رکھتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچائیں، اور جتنا ہو سکے لوگوں کو سیدھی بات سے جوڑ کر کے سچ، حق اور حقیقت کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں پہنچانے میں ہمارا آپ لوگ تعاون کریں۔ اور بارہا جو آپ لوگوں سے اپیل کی جاتی ہے ادارے کو مضبوط بنانے کی، ہر اعتبار سے اس پر آپ لوگ سنجیدگی سے غور کریں۔ چلیے چلتے ہیں ناظرین۔ کچھ آپ لوگوں کو معلوم ہے ہماری ٹیم جو ہے جموں کشمیر میں اس وقت، اور بلکہ جموں کشمیر میں لگاتار کام بھی کر رہی ہے، اور اس وقت وہاں ریڈ زون میں تبدیل کیے جانے کی وجہ سے بھی راشن بھی نہیں مل پا رہا ہے۔ وہاں سے خبریں آ رہی ہیں بہت ہی زیادہ لاک ڈاؤن کی سختیاں ہو رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگ وہاں مدرسے میں آ کر کے، اسکول میں آ کر کے، اور مختلف علاقوں میں جو اس وقت کام ہو رہا ہے وہ ساری چیزیں جو ہے اس وقت ہماری ٹیم وہاں کام کر رہی ہے الگ الگ علاقوں میں۔ راشن کے ساتھ ساتھ ہم نے راشن میں تھوڑا اس وقت اضافہ بھی کر دیا ہے، تاکہ رمضان بھی آنے والا ہے، اور اس وقت لاک ڈاؤن میں بھی جو ہے توسیع ہوتے ہوئی جا رہی ہے الگ الگ قسم سے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ جو ہے کچھ زیادہ وقت کا راشن ان تک پہنچے تاکہ وہ بار بار پریشان نہ ہوں۔ ہم یہی کوششیں کر رہے ہیں، اور آپ لوگوں کا تعاون پہنچ رہا ہے لوگوں تک۔ بارہا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تصویریں نہ دکھائیں۔ ہم چاہتے یہ ہیں کہ جو ہے یہاں سے ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے کسی کو جو ہے یہ کرنا، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے آپ لوگوں کو جو لوگ تعاون کرتے ہیں ان کا اعتماد میں لینا، بھروسہ جیتنا، یہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ میں ہماری پوری ٹیم کو جو الگ الگ جگہوں پر اس وقت کشمیر کے مختلف علاقوں میں کام کر رہی ہے، سبوں سے میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، بالخصوص وہاں کی انتظامیہ کا، پولیس اہلکار کا، کہ وہ لگاتار ہماری ٹیم کو سپورٹ بھی کر رہی ہے، اور جو لوگ پریشان حال ہے ان کی نشاندہی بھی کر رہے ہیں۔ بہرکیف ناظرین، آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ آپ لوگ جو ہے یہاں کے لوگوں کو اگر مدد پہنچانا چاہتے ہیں تو ساری تفصیلات یہاں نیچے ہے، آپ اس پر غور و خوض کر سکتے ہیں۔ ناظرین آئیے اس وقت میں آپ کو دو اور افسوسناک خبریں سناتا ہوں۔ سب سے پہلے حضرت مولانا
वसीम साहब जो जामिया शेख उल हदीस हैं, जामिया अशरफुल उलूम रशीदी गंगोह के, उनका इंतकाल हुआ है। इंतहाई अफसोस के साथ ये ख़बर हमारे एक नाज़िर ने हमें दी है। और मौलाना गुज़िश्ता 36 साल से बुखारी शरीफ जो है जामिया में पढ़ा रहे थे, उनका इंतकाल हुआ है कल रात 8 बजे 8:30 बजे। अल्लाह ताला उनको ग़रीक़ रहमत करे और जो खिदमत उन्होंने अंजाम दी हैं अल्लाह उनका भरपूर बदला नसीब करे। इसके अलावा नाज़रीन, एक अफसोसनाक ख़बर ये भी कि हमारे मौलाना जामिया कुलकुआ की एक मशहूर शख्सियत और वहाँ के उस्ताज़ुल उलमा हज़रत मौलाना अब्दुर्रहीम साहब फ़लाही साहब भी जो है वो अल्लाह ताला की रहमत में पहुँच गए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मौलाना से मेरी भी कई बार मुलाकात हुई, अक्सर प्रोग्रामों में मुलाकात होती थी और मौलाना बारहा हमारे इदारे की सराहना भी करते थे और हमारी हिम्मत अफजाई भी करते थे। अक्सर जलसों में भी मौलाना से हमें मुलाकात का शर्फ हुआ था। अल्लाह और मौलाना कई सारी किताबों के मुसन्निफ भी हैं और बहुत ही नरम दिल और खुश गुफ्तार थे मौलाना, और मौलाना से हमारी वाबस्तगी भी थी और मौलाना का इंतकाल हो गया है। अल्लाह ताला हज़रतुल उस्ताज़ की बाल बाल मग़फ़िरत फ़रमाए, जन्नतुल फ़िरदौस में आला मक़ाम नसीब फ़रमाए दोनों हज़रात को, और पसमानदगान को सब्र जमील अता फ़रमाए। मुताल्लिक़ीन दोनों असातिज़ा के मुताल्लिक़ीन जो है लगातार हमें ये ख़बर भेज कर के कह रहे थे कि सीधी बात मिले। मैं चाह रहा था कि जो है बख़ुद चूँकि मौलाना की वाबस्तगी थी सीधी बात से, और बाकायदा हमेशा से सराहना भी और पुष्ट पनाही भी करते रहे थे मौलाना अक्कल कुआ के मौलाना अब्दुर्रहीम साहब फ़लाही। लिहाजा जो है ये हमारी भी ज़िम्मेदारी थी कि ख़बर आप तक पहुँचाए। अल्लाह ताला दोनों हज़रात को जो है ग़रीक़ रहमत करे। आइए नाज़रीन, अगली ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। अगली ख़बर जो इस वक्त मैं आप लोगों के सामने रखने के लिए जा रहा हूँ, कुछ सबसे पहले मैसूर की वो क्लिप आपको दिखाना चाहता हूँ। क्लिप नहीं बल्कि एक टुकड़ा है जो इस वक्त सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये जो शख्स आप देख रहे हैं इसका नाम है KB गणपति। मैसूर से एक अंग्रेज़ी अखबार शाये होता है जिसका नाम है स्टार ऑफ मैसूर। इसमें इसने एक एडिटोरियल लिखा है, इदारिया लिखा है, और उसमें बैड एप्पल्स इन द बास्केट के नाम से जो उन्वान दिया गया है, इसमें बैड एप्पल्स मुसलमानों को करार दिया गया है। यानी उनका मानना है कि जो है अच्छे, मैं तर्जुमा तो आप लोगों के सामने नहीं कर सकता, अलबत्ता जिसमें उसने टारगेट किया है मुसलमानों को वो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। उसका खुलासा ये है कि जो है अच्छे सेबों के साथ कुछ गलत सेब यानी सड़े हुए सेब मिल गए हैं, उनको हटाने की ज़रूरत है, उनको ख़त्म करने की ज़रूरत है। ऐसे ही ख़त्म करने की ज़रूरत है जैसे कि इसराइल में यहूदी मुसलमानों के साथ कर रहा है, और सिंगापुर में इससे पहले किस तरह कत्लेआम हुआ था उसकी ताबीर दे कर के ये शख्स अपनी इदारिया में खरदिमाग शख्स, इसको पता नहीं किसने सहाफ़ी बना दिया है, इसने जो है इस वक्त मुसलमानों के कत्लेआम करने की अपील कर रहा है अपनी इदारिये में। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त पूरी की पूरी ज़बानों के अखबारात की क्या ज़हनियत बन चुकी है, वो किस कदर असबियत में मर चुके हैं। अब ऐसे हालात, ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ बड़ी बड़ी तंजीमों को सामने आना चाहिए, लीडरान को सामने आना चाहिए, और इस वक्त जगह जगह पर मुख्तलिफ़ अखबारात के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज हो भी रहे हैं और ख़ुद पुलिस जो है फटकार भी लगा रही है। मैं एक वीडियो इस वक्त आपको दिखाता हूँ, इसलिए चलते खैर वो वीडियो दिखाने से पहले मैं आप लोगों से अपील कर दूँ कि इस बात को संजीदगी से मत लेना। मैसूर वालों की ज़िम्मेदारी है कि वो इस ख़बर के ख़िलाफ़ इस अखबार का टुकड़ा निकालें, पुलिस थाने में पेश करें। ये अलल ऐलान जो है कत्लेआम की बात कर रहा है, ऐसी बात नहीं कि ढकी छुपी बात कर रहा है, ये अलल ऐलान कह रहा है कि यहाँ के हिंदुस्तानी मुसलमानों के साथ वही बर्ताव अपनाया जाए जैसे इसराइल फ़िलिस्तीन में मुसलमानों के साथ अपना रहा है, यानी कत्लेआम किया जाए। ये बाकायदा अपील कर रहा है अपनी इदारे में, जो पूरी जान होता है अखबार का उसमें यह अपील कर रहा है। तो सोचिए कि जो है क्या ज़हनियत होगी शख्स की। KB गणपति इसका नाम है। एक ख़बर का टुकड़ा निकालें और ले जाकर के जो है पुलिस थाने में रखें, और जहाँ जहाँ तक हो सकता है इस अखबार के ख़िलाफ़, इस शख्स के ख़िलाफ़ केस दर्ज करने की कोशिश करें। इसके अलावा नाज़रीन आइए एक वीडियो दिखाता हूँ। उस वीडियो में किस तरह जो है मीडिया थूकने की, तबलीगी जमात वालों पर थूकने की बात कर रहे थे ना, तो एक पुलिस वाले से पूछ लेते हैं कि
जो तबलीगी लोगों पर थूकने की बात कर रहे थे वो कहाँ तक क्या है, उस सिलसिले में ये पुलिस क्या जवाब देता है। देखिए, पुलिस साफ तौर पर कहते हैं कि भाई जिस आदमी ने शिकायत कर रहा है कि उस पर थूका गया है, कम से कम उस आदमी को तो सामने लाओ। फिर उसके बाद किस पे थूका गया उसको आइडेंटिफाई किया आप लोगों ने, ये पूछ रहा है। पहले उनको सामने लाओ जिस पे थूका गया है, फिर हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो इस तरह के जवाब अचानक सुनने के बाद जो है, जो रिपोर्टर सवाल किया था ताकि बदनाम किया जा सके तबलीगियों को, उसकी जो है बोलती बंद हो गई थी। उन्होंने कहा कि ये तो खबरें आ रही है कि थूका गया, लेकिन जिस पर थूका गया वो आखिर है कहाँ। इस आवाज को सुन ले, मैं आपको बताता हूँ, आगे चलता हूँ। आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि किस पर थूका गया उस आदमी को आइडेंटिफाई किया आप लोग? पहले उनको लाइए ना, किस पर थूकने की बात बता रहा है, पहले उनको लाइए, तब से वहीं से हम लोग जांच शुरू करना है। हम उसी आदमी को खोज रहा है कि जिन पर थूकने की बात चल रहा है। ये पूछ रहा हूँ कि सिंपल बात है, सब लोग कह रहा था कि कब वो आया नाक ले लिया, नाक काट के ले गया, तब नाक है कि नहीं पहले देख लीजिए अपने पास। तो नाज़रीन, आपने सुन लिया, ये है लोगों का जबरदस्ती पुलिस से पूछ करके उसको फिर जो है सुर्खियां लगाकर बांटने की कोशिश कर रहे थे। बहरकैफ नाज़रीन, आइए मैं आपको तमिलनाडु की एक वीडियो दिखाता हूँ। ये तमिल की जबान में एक आदमी बहस कर रहा है वहाँ के अस्पताल के इंतजामिया से, वहाँ के लोगों से। दरअसल इसका इल्ज़ाम ये है कि जो है ये जब अस्पताल पहुंचे तो उसके बाद कई लोग आए, वो दिखाना चाहते थे, अपना इलाज करवाना चाहते थे। उसके बाद कई लोग आए, तमाम लोगों को जो है टोकन दिया गया, लेकिन 4-5 लोगों के आने जाने के बाद भी जो शख्स सबसे पहले आया था उसको टोकन नहीं दिया गया। और वो टोकन ना देने की वजह से इनका इल्ज़ाम है कि मुसलमान होने की वजह से उनको टोकन नहीं दिया गया, इसलिए जो है वो अस्पताल में इस तरह आर्गूमेंट कर रहे हैं। मैं थोड़ी आवाज़ के साथ ही सुनाता हूँ, शायद तमिल जानने वाले इसको समझ सकें, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। எப்படி பேசணுங்க? இருங்க நீங்க தான் பேச வேண்டாம், விட்டுருங்க, பேச முடியும், இருங்க, சத்தம் போடாதீங்க. சத்தம் போடுறீங்க, நீங்க டென்ஷன் ஆயிட்டு இருக்கீங்க. ஆமா, ஏங்க சப்போர்ட் பண்றது தப்பு இல்லைங்க. மனசு தொட்டு சொல்லணும், உண்மை சொல்லணும். போன் டோக்கன் அது எனக்கு பின்னாடி எனக்கு தெரிஞ்ச 3 பேர் வந்துட்டாங்க. சரி, உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை? இப்ப இருந்து நாங்க பாக்கணுங்க டாக்டர். என்ன பிரச்சனைன்னு சொல்லுங்க. அவருக்கு கை கொடைச்சல், அதுதான் எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்க்கறதுக்காக தான் உங்களுக்கு வந்தோம். கேட்டு சொல்லுங்க, அவர்கிட்ட பார்க்கணும். பார்க்கலினாலும் என்ன காரணம் எனக்கு தெரியணும். எதுக்கு வீடியோல எடுக்கணுங்க, எடுக்கணும். तो नाज़रीन, ये हो रहा है, अस्पतालों में जाइए, दीगर इलाकों में जाइए, सब्जी बेचने के लिए जाइए, करिए करिए में जाइए। मीडिया ने इस कदर नफरत फैला चुका है कि हर तरफ जो है इस वक्त मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, उनके साथ तीसरे दर्जे के शहरी का बर्ताव करने की कोशिशें की जा रही हैं, और ये सारा का सारा किया धरा मीडिया की जानिब से है। इसी वजह से कविता कृष्णन ने साफ तौर पर फटकार लगाई है पूरे मीडिया वालों को। और इसके अलावा राहुल कंवल, जिसने मदरसों को हॉट स्पॉट कहने की कोशिश की थी और पूरा प्रोग्राम बनाया था, इन्वेस्टिगेशन के नाम पर जो है अपनी दलाली किया था। कल मैंने सारे वाकयात आप लोगों के सामने रखी थी। सारी चीज़ें आने के बाद कविता कृष्णन जो है पूरी तरह से उनको लताड़ा है, जो सियासी लीडर भी है, समाजी लीडर भी हैं। मैं ये सारे आवाज़ के साथ आपको आखिर में सुनाने की कोशिश करूँगा। उसके अलावा नाज़रीन, आइए चिकबल्लापुर से एक खबर आ रही है, एक वीडियो सामने आई है, उसको देखें। ये चिकबल्लापुर की वीडियो है एक अस्पताल की, जहां पर कोरोना वायरस से जो है इलाज पा रहे थे ये सारे के सारे लोग। और ये अब खबरें आ रही हैं कि ये लोग 4 पेशेंट थे और इन्होंने सब लोगों ने जो है अल्लाह ताला ने इनको शिफा दिया और ये पूरे रिकवर हुए और अस्पताल से लोग डिस्चार्ज भी हुए। तो उस वक्त जो है उनका इस्तकबाल पूरे अस्पताल की इंतज़ामिया ने, वहाँ से वाबस्ता लोगों ने और उनके अहले खाना ने और डॉक्टरों ने, नर्सों ने, पूरे तिब्बी अमले ने पूरी तरह से जो है इज्जत के साथ उनका इस्तकबाल किया और अस्पताल से उनको अलविदा किया। और पूरी दुनिया को बताने की कोशिश की कि मर्ज होता है
उसका कोई धर्म नहीं होता। जब आप उससे निमटते हैं, उससे लड़ते हैं, मौत के मुंह में जाकर के जब आप वापस आते हैं तो उनके साथ यही सलूक होना चाहिए। और माशरे के लिए भी एक खबर देने की कोशिश की गई कि इनके साथ अछूत वाला मामला नहीं अपनाना चाहिए। वो लोग शिफायाब हो चुके हैं, उनके साथ जो है बीमारी ख़त्म हो चुकी है, वो शिफायाब होकर के अपने घर जा रहे हैं। ये चिकबल्लापुर की पेशेंट की बात है। आपको मालूम होना चाहिए कि अब तक चिकबल्लापुर में 9 मरीजों को जो है मुतासिर होने की वजह से उनको जो है इलाज के लिए ले जाया गया था। 6 पूरे के पूरे रिकवर होकर के अपने घर चले गए हैं। इसी तरह नाज़रीन, कल्याण से महाराष्ट्र की एक वीडियो आज आई। यहाँ बताया जा रही कि 6 महीने की बच्ची को जो है कोरोना वायरस हो चुका था, वो भी पूरी तरह सेहतयाब हुई, शिफायाब हुई और वो अपने घर लौटी। तो फिर पूरे जो है अपार्टमेंट्स वालों ने किस तरह उनका इस्तकबाल किया है, या आप देख सकते हैं। अपने अपने घरों के बालकनियों में खड़े होकर के उस बच्ची का इस्तकबाल किया गया जो शिफायाब होकर के अपने घर पहुंची है। तो नाज़रीन, ये होता है माशरे में, समाज में एक खुशी को बांटना, अच्छे अंदाज में इंसान को बहैसियत इंसान देखना, धर्म के नाम पर जो है उनको टारगेट ना बनाना। ये इस तरह की वीडियो से कहीं कहीं ये ऐसे दौर में जहाँ पे सिर्फ नफ़रतों के सौदागर बैठे हुए हैं, वो चाहे एयर कंडीशन वाली स्टूडियोज़ में हो या फिर जो है सियासी गलियारों में हो, हर तरफ नफ़रत के सौदागर बैठे हुए हैं। ऐसे हालात में जब इस तरह की कुछ तस्वीरें और वीडियोस निकल कर के सामने आती हैं तो कहीं कहीं कुछ उम्मीदों का चिराग टिमटामाता हुआ नजर आता है। बहरकैफ नाज़रीन, आइए आगे बढ़ते हैं और मैं इस वक्त आपको ले चलता हूं पंजाब से बहुत ही अफसोसनाक खबर ये आई है कि वहां पुलिसों पर हमला किया गया है। जी हाँ, कुछ लोगों ने पुलिसों पर हमला कर किया जिनको नहंग सिख कहते हैं। 3 अहलकार जख्मी हुए हैं, 7 लोगों को गिरफ्तार किए जाने की बात कही जा रही है। कोरोना वायरस के पेश नज़र नाज़रीन, मुल्क भर में नाफिज लॉकडाउन के दरमियान पटियाला में पंजाब पुलिस की तरफ से कर्फ्यू पास दिखाने को कहने के बाद नहंगों सिखों का एक तबका है जिनको नहंग कहा जाता है, नंग भी बोलते हैं, बाज़ लोग नहंग भी बोलते हैं। एक ग्रुप ने पुलिस अहलकार पर हमला कर दिया। इस वाक़े में मुतअद्दिद पुलिस अहलकार जख्मी हो गए। वाज़ेह है कि लॉकडाउन के दौरान लोगों को कहीं आने जाने पर पाबंदी आयद है और ज़रूरी खिदमात अंजाम देने वाले कर्फ्यू पास दिखाकर ही कहीं आ जा सकते हैं। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी पंजाब के BS सिद्धू ने बताया कि 7 हमलावर नहंगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरी असना पुलिस की फायरिंग में जख्मी एक शख्स को अस्पताल में दाखिल कराया गया। इससे कबल पंजाब के DGP ने बताया कि आज सुबह एक अफसोसनाक वाक़े में नहंगों के एक ग्रुप ने पटियाला की सब्जी मंडी में पुलिस एहलकार और मंडी बोर्ड के कुछ अफसरान को जख्मी कर दिया। हरजीत सिंह ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जिनका हाथ कट गया है, उन्हें PGI चंडीगढ़ में दाखिल किया गया है। तमाम जख्मियों का इलाज किया जा रहा है। बैगम नज़ीन, आज ये पूरा वाक़या पेश आने के बाद जो है आज पूरी सोशल मीडिया में आज यही वीडियो भी गर्दिश कर रही है और पूरा जो है पंजाब को लेकर के सोशल मीडिया में एक ट्रेंड इस वक्त चल रहा है। बैगम नाज़रीन, आइए मैं आपको अब दूसरी खबर की जानिब ले चलता हूं और दूसरी खबर है मालेगांव की। मालेगांव में एक PSI के जो है खुदकुशी कर लेने की खबरें आ रही हैं और ये कल की खबर है। तफसीलात ये हैं कि मालेगांव शहर के DYSP रत्नाकर नोले के राइटर माने जाने वाले और उनके साथ हमेशा रहने वाले PSI अजहर शेख ने सिटी पुलिस स्टेशन के अहाते में अपनी कनपट्टी पर गोली मारकर खुदकुशी कर ली है। अजहर शेख का ताल्लुक जलगांव से है कहा जा रहा है और वो मालेगांव में सोई गांव के करीब जो है इस वक्त मुकीम थे और मरहूम 3 साल गढ़चरोली और 2 साल मनमाड़ में भी जो है वो खिदमत अंजाम दे चुके हैं महकमे पुलिस में और इस वक्त 10 माह कबल मालेगांव आए हुए थे और यहाँ पर अपनी ड्यूटी पर मामूर थे और ड्यूटी अंजाम दे रहे थे। इस दरमियान में अचानक उनकी खुदकुशी ने बहुत सारे सवालात खड़े कर दिए हैं। अब देखना है कि पुलिस ने सारी चीज़ें जब्त कर ली है उनकी और तहकीक कर रही है। उनके खुदकुशी की असल वजह अभी तक सामने नहीं आई है। अगले दिनों में शायद उनकी खुदकुशी के अहम तरीन जो भी वजूहात हो सकते हैं सामने आ सकते हैं। अच्छा नाज़रीन, आगे चलते हैं। आगे इस वक्त आपको स्क्रीन पर एक इमेज नज़र आएगी। इस इमेज को देखिए, इसका नाम पल्लवी जैन है। ये हेल्थ डिपार्टमेंट MP के हेल्थ डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी है और इसके बेटे की एक ट्रैवल हिस्ट्री भी है, यानी बैरून ममालिक भी होकर के आया था। अब वो जो है कोविड+ है, यानी कि कोविड इसमें यानी कि कोरोना वायरस पाया गया है।
اس کے علاوہ 36 لوگوں کو, اس کے ڈپارٹمنٹ کے 36 لوگوں کو بھی جو ہے کووڈ متاثرین پائے گئے ہیں, جن کی جانچ چل رہی ہے. اب یہ خاتون جو ہے اسپتال جا کر کے جانچ کرنے کے بجائے اسپتال کے عملے کو ہی اپنے گھر میں بلوا لیا ہے. ایک تو 36 لوگوں کو متاثر بھی کر دیا, اور دوسری بات یہ ہے کہ جو گھر میں عملے کو بلا کر کے یہ کر رہی ہے. اس کے بیٹی کی ٹریول ہسٹری بھی ہے, لیکن یہ کوئی بھی نہیں بتا رہا ہے. کوئی میڈیا بتایا آپ کو کہ اس کے بیٹے نے باہر کسی بیرون ملک سے کورونا وائرس لے کر کے آیا اور یہاں پھیلا دیا, اور بالخصوص طبی عملے میں جو کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ایم پی کی سیکریٹری ہے, کوئی کچھ دکھانے کو تیار ہی نہیں ہے. راہل کنول کو, زی میڈیا کو اور سارے لوگوں کو صرف تبلیغی جماعت ٹوپی اور داڑھی نظر آ رہی ہے. یہ لوگ یہاں پر کورونا وائرس پھیلا رہے ہیں. ہم نے کہتے کہ لوگ کورونا وائرس پھیلا رہے ہیں. کورونا وائرس مذہب وغیرہ دیکھ کر کے نہیں آتا, کوئی کہیں سے بھی اس کو پکڑ لیتا ہے. لیکن میڈیا نے جو ماحول بنایا اس کے اعتبار سے ہم یہ تصاویر دکھا کر کے بتانا پڑتا ہے کہ بھائی یہاں سے بھی کورونا وائرس پھیل رہا ہے. دیگر بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں, 20% لوگوں کو دکھا کر کے 80% لوگوں کو چھپایا جا رہا ہے. تو ان 80% لوگ کہاں سے آئے, کیوں کر کے آئے, یہ ساری چیزیں دکھانی پڑتی. یہ ایک ویڈیو ہے. آئیے میں ابھی آپ کو ایک اور خبر سناتا ہوں, اور وہ خبر ہے اس وقت جو آ رہی ہے. یہ میں جو آپ کو خبر اس وقت سنا رہا ہوں فرسٹ پوسٹ کی ہے, اور یہ خبر جو شائع ہوئی تھی 12 اپریل کو شائع ہوئی ہے. اور وہ یہ ہے کہ یو کے میں, یونائٹڈ کنگڈم میں جو ایسکان کہا جاتا ہے, جو ہندوستان کی ایک مندر ہے, اس کے بہت ساری جگہ شاخیں ہیں. ایسکان کے میں رہنے والے 6 لوگوں کا انتقال ہو چکا ہے, معاف کیجیے گا 5 لوگوں کا انتقال ہو چکا ہے, اور 16 لوگوں کو ٹیسٹ کیا گیا تو ان کو کورونا وائرس کے متاثر پائے گئے ہیں, پازیٹیو ان کا آیا ہوا ہے. اور 1000 سے زیادہ لوگ اس پروگرام میں شریک ہوئے تھے. ایسکان کا تعلق ہندوستان سے براہ راست ہے, آپ لوگ یاد رکھیں اس کو. تو اب پورا میڈیا اس خبر کو کیوں چھپا رہا ہے میرے سمجھ میں نہیں جا رہا. رامیشور داس جو کہ کورونا وائرس کا متاثر ہے, اور چروسامی, بھکتی چروسامی, ان تمام بہت سارے لوگوں کے نام آئے ہیں, جن لوگوں کا کئی لوگوں کا انتقال بھی ہو گیا ہے. ان کی وجہ سے ان کی فیملیز بھی متاثر ہوئے ہیں. اور یونائٹڈ کنگڈم کے ایسکان میں, یعنی ٹیمپل جہاں پر ہوتا ہے, وہاں پہ لوگ ہیں جس کا تعلق بھارت سے براہ راست ہے. اب ان تمام چیزوں کو متاثر بھی ہوئے ہیں, مرے بھی ہیں اس بیماری کی وجہ سے. اور وہ جو گیدرنگ ہوئی تھی اس میں 1000 لوگوں کے شریک ہونے کی خبریں آ رہی ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سوسائٹی آف کرشنا, انٹرنیشنل سوسائٹی آف کرشنا, جس کو ایسکان کہا جاتا ہے, وہ لگ بھگ پورے ملکوں میں پھیلی ہوئی ہے اس کی شاخیں. اب آپ بتائیے, وہ میڈیا جو چلا رہی تھی کہ تبلیغی جماعت والوں کی 150 ممالک میں شاخیں ہیں, فلاں ہیں, اس ایسکان کی بھی شاخیں تو پوری دنیا میں بھری ہوئی ہیں. یہاں بھی تو گیدرنگ ہو رہی, گیدرنگ نہیں ہوئی بلکہ 6 لوگوں کی ہلاکتیں بھی ہوئی, 1000 سے زیادہ لوگ وہاں پائے بھی گئے. یہ فرسٹ پوسٹ کی رپورٹ ہے, آپ لوگ اٹھا کر کے دیکھ سکتے ہیں. لیکن میڈیا اس کو نہیں دکھا رہا ہے. ایک اور خبر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اور یہ ہے دی ہندو کی. جی ہاں, ایشا یوگا, اس چہرے کو تو آپ جانتے ہی ہیں. انگریزی میں اس قدر نفرت پھیلاتے ہیں مسلمانوں کے خلاف کہ بتائیے نہیں. اس میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ شیوراتری میں یہاں پہ فیبروری 21 کو جو مختلف علاقوں میں, مختلف جگہوں پر جو پروگرام منعقد کیے گئے تھے, ان میں سے بھی بہت سارے 150 فارینرز جو ہے اس وقت ایشا یوگا فاؤنڈیشن میں ہیں, جو بیرون ممالک سے جن کا تعلق ہے اس پر. اور وہ پھنسے ہوئے, ہم پھنسے ہوئے کہیں گے, جو لوگ چھپے ہوئے کہتے ہیں ان کو ان کی الفاظ پہ ہم لوگ جواب نہیں دیں گے. پھنسے ہوئے ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے, لیکن ان کے سلسلے میں بھی کوئی بات نہیں کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انٹرنیشنلی طور پر یہ لوگ مشہور ہیں اور ان کے خاص دھرم سے ان کا تعلق ہوتا ہے. اس وجہ سے میڈیا ان کے قریب بھی نہیں جاتا اور ان کی خبریں دکھاتا بھی نہیں ہے.
लेकिन द हिंदू ने इसको पोस्ट किया है, फर्स्ट पोस्ट ने इन तमाम खबरों को जगह दी है, लेकिन यहाँ का मेन स्ट्रीम मीडिया को सांप सूंघ गया इस खबरों को दिखाने। ये सारे हकाइक मैं आप लोगों के सामने इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग इन तमाम चीज़ों को दूसरों के सामने पेश करें कि कौन सी चीज़ों को छुपाया जा रहा है और कौन सी खबरों को जो है सामने लाया जा रहा है। बहरकैफ एक एक करके सामने आती जा रही हैं, कुछ वीडियोस और भी हैं जो मेरे पास आई हुई हैं, मैं वो भी दिखाने की कोशिश करता हूं कि किस तरह इस वक्त मखसूस मजहब के लोग, अगर मैं कहूँ साफ अल्फाजों में हिंदू मजहब के लोग जो है इस वक्त मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम अपने अपने मंदिर और मठों में बाकायदा कर रहे हैं। और शिवरात्रि के दिन जो अलग अलग किस्म के, आपके तो मालूम है कि हिंदू धर्म में हर महीने में कोई ना कोई त्यौहार आता है। जाहिर सी बात है कि ये जो लॉकडाउन के अयाम भी गुजर, इसमें भी चूँकि मुख्तलिफ समाज हैं, मुख्तलिफ तबक़ात हैं, मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले हैं, उनके अपने अलग अलग नामों के और रंगों की जो है उनके त्यौहार होते हैं। इन त्यौहारों में भी जमघट्टा जमा हो रहा है और वो वीडियोस जो है सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं। अलबत्ता मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा रहा है क्योंकि उसके कैमरे के आंखों को सिर्फ मुसलमान ही नजर आते हैं। बहरकैफ नाज़रीन, आइए कुछ और जानकारी लेने की करते हैं। कुछ अहम तरीन खबर, सबसे पहले मैं सऊदी की खबर आप लोगों के सामने रख दूं कि सऊदी फरमारवा ने कर्फ्यू की मुद्दत में ताहुक्म सानी तौसी कर दी है। जी हाँ, सऊदी अरब के फरमानरवा खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए ममलिकत भर में जारी कर्फ्यू में ताहुक्म सानी तौसी का हुक्म दिया। एक न्यूज़ चैनल ने वज़ारत दाखिला के ज़राए के एक बयान का हवाला देते हुए अपनी रिपोर्ट में बताया कि शाह सलमान ने 21 दिन के लिए लगाए जाने वाली कर्फ्यू की मुद्दत ख़त्म होने से पहले ही ये हुक्म जारी कर दिया है ताकि कोई किसी भी जो है खुशफहमी में ना रहे कि 21 दिन के बाद लॉकडाउन या कर्फ्यू ख़त्म हो जाएगा। बहरकैफ नाज़रीन, आइए आगे एक और खबर से बात करते हैं। अमेरिका की बात करते हैं ना, अमेरिका में कोरोना से होने वाले अमवात सबसे ज़्यादा है। 20,000 से तजावुज़ इस वक्त अमेरिका में अमवात की तादाद को पहुंच चुकी है। पूरी दुनिया में कोरोना मुतासरीन की तादाद जहां 18 लाख की जानिब गामजन है, वहीं उससे हलाक होने वालों की तादाद 1,08,000 से ज़्यादा हो गई है। और अब अमेरिका वो मुल्क हो गया है जहाँ इस वायरस से मरने वालों की तादाद सबसे ज़्यादा है। अमेरिका में कोरोना वायरस से हलाक होने वालों की तादाद 20,000 से ऊपर पहुंच गई और मुतासरीन की तादाद 5 लाख से ऊपर है। अमेरिका के बाद इटली दुनिया का वो मुल्क है जहां हलाकतों की तादाद सबसे ज्यादा है और वहां अमवात की तादाद 19,000 से ऊपर है, जबकि मुतासरीन की तादाद 1,52,000 है। यूरोप के मुल्क स्पेन में कोरोना मुतासरीन की तादाद अभी भी यूरोप में सबसे ज्यादा है और वहां मुतासरीन की तादाद 1,63,000 है और उससे हलाक होने वालों की तादाद 16,000 से ज्यादा है। जर्मनी में कोरोना मुतासरीन की तादाद 1,25,000 से ज्यादा है और मरने वालों की तादाद 2,800 के ऊपर है। फ्रांस में इस वायरस से हलाक होने वालों की तादाद 14,000 के करीब पहुंच गई है। बरतानिया में अमवात की तादाद 10,000 के करीब पहुंच गई है और वहां मुतासरीन की तादाद 78,000 से ज्यादा हो गई है। ईरान में मुतासरीन की तादाद 74,000 से ज्यादा है और वहां इस वबा से हलाक होने वालों की तादाद 4,300 से ऊपर है। पाकिस्तान में कोरोना मुतासरीन की तादाद 5,000 से तजावुज कर गई और वहां अमवात की तादाद 86 है। हिंदुस्तान में इजाफे का रुझान जारी है और अब तक 242 अमवात रिपोर्ट हो चुकी हैं हिंदुस्तान में। तो नाज़रीन, ये पूरी जो है आलम में जो इस वक्त कहर बरपा है कोरोना वायरस का, उसकी तफसीलात मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं। हिंदुस्तान की बात करें तो गुज़िश्ता 24 घंटों के अंदर 909 नए केस सामने आए हैं। इस दौरान 34 अफराद हलाक हो चुके हैं, यानी कि लगातार हिंदुस्तान में ये तादाद बढ़ती जा रही है, हलाकतों की भी और मुतासरीन की भी। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस कोविड-19 के 900 से ज्यादा नए केसेस दर्ज किए गए और साथ ही मुतासरीन की तादाद बढ़कर 8,356 हो गई और इस दौरान इस वबा से 34 अफराद की मौत हो जाने से मरने वालों की तादाद 273 तक पहुंच गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 909 केस नए सामने आए हैं। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं नाजरीन की जो है हिंदुस्तान भी धीरे धीरे इस कहर के लपेट में आता जा रहा है। नाज़रीन, इसके अलावा एक अहम तरीन खबर जो मुझे आप लोगों के सामने रखना है वो है CAA को लेकर के एक रिपोर्ट आई हुई है, उसके बारे में बात करनी है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा है कि हिंदुस्तान को शहरियत कानून यानी CAA फौरन रद्द करना चाहिए और ये यकीनी बनाना चाहिए कि हिंदुस्तान की पनाह से मुताल्लिक या मुहाजिर पॉलिसी मजहब या किसी भी बुनियाद पर तफरीक करने वाली ना हो और बैनुल अक़वामी कानून के मेयारात के मुताबिक हो। ह्यूमन राइट्स वॉच के जुनूबी एशियाई खित्ते की डायरेक्टर मीनाक्षी गांगुली ने 82 सफ़हात की रिपोर्ट जारी करते हुए कहा है कि नया तरमीम शुदा शहरियत कानून हिंदुस्तान के बैनुल अक़वामी जिम्मेदारियों की खिलाफ वर्जी है, जिनके मुताबिक नस्ल, रंग, कम्युनिटी, कौमियत वगैरह की बुनियाद पर शहरियत देने से इनकार नहीं किया जा सकता। रिपोर्ट में इल्ज़ाम लगाया गया है कि सरकार की पॉलिसियों ने हुजूमी तशद्दुद
और पुलिस की गैर फ़आलियत के लिए दरवाजे खोले, जिससे मुल्क भर में मुसलमानों और दूसरी अक़लियती कम्युनिटी के बीच डर पैदा हुआ है। खबरसा एजेंसी पीटीआई के मुताबिक न्यूयॉर्क वाक़ई इस तंजीम ने आगे कहा, हिंदुस्तान ने शहरियत कानून की शहरियत की तस्दीक करने की कार्रवाइयों से अलग करने की कोशिश तो की, लेकिन बीजेपी रहनुमाओं की मुतजाद, इम्तियाजी और नफरत भरे दावों की वजह से अक़लियती कम्युनिटी को मुतमईन करने में नाकाम रहा है। ये सारी चीज़ें जो है उस रिपोर्ट में 82 सफ़ात की रिपोर्ट पेश करके बाकायदा जो है मुतालबा किया गया है कि वो CAA को वापस ले ले। बहरकैफ नाज़रीन, ये कुछ अहम तरीन खबरें थी जो आप लोगों के सामने रखना था। मैंने आगाज़ में ये कहा था कि कविता कृष्णन ने किस तरह से जो है लताड़ा है मीडिया वालों को, वो वीडियो आप यहाँ सुने। इसके अलावा पाकिस्तान से वाबस्ता अफराद जो इस वक्त UAE में हैं, उनकी भी एक वीडियो इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है वायरल हो रही है। ये पाकिस्तान के कौंसलेट के सामने जो दुबई में है, और दुबई की हुकूमत UAE अथॉरिटीज़ के जानिब से, दुबई की गवर्नमेंट की जानिब से इनको किसी भी तरह की जो है सपोर्ट नहीं किया जा रहा है, और क़वानीन की वजह से इनको बेघर कर दिया गया है। यानी कि इनको जो इखराज करने की सारी बातें सामने आई हैं, और इन्होंने पूरे पाकिस्तान की कौंसलेट से भी और वहाँ की UAE अथॉरिटी से भी मुतालबा किया कि उनके जो है मामलात को, उनके मसाइल को हल करे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। इस वजह से ये वहाँ जाकर के एहतिजाज कर रहे हैं। ये वीडियो इस वक्त सामने आई है। बाकी नाज़रीन, कविता कृष्णन की इस फटकार को आप सुने और मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंडिया टुडे और राहुल कंवल के लिए है, खास करके जो आज रात के 8 बजे एक वैश्विक महामारी के दौरान वो मदरसा हॉटस्पॉट्स पर एक स्पेशल कार्यक्रम, तथाकथित इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का कार्यक्रम करने की बात कह रहे हैं ट्विटर पे। तो यहाँ इस माध्यम के जरिए मैं उन्हें इस बात को कहना चाहती हूँ कि चिकने चुपड़े चेहरे के पीछे आप खुद को जो है इज्जतदार पत्रकार कहना छोड़ दीजिए। आप जो हैं वो सबके सामने हैं, आपका नकाब उतरा हुआ है, और आप उन्हीं नफरतकारों में हैं, पत्रकारों में नहीं, नफरतकारों में, जो अर्नब गोस्वामी या जी न्यूज के सुधीर चौधरी जैसों में आप गिने जाएंगे। इतिहास आपको वहीं गिनेगी, इतिहास आपको छी कहेगी। और इस समय जब वैश्विक महामारी है तो पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरह से भारत में आप जैसे नफरतकार वो पत्रकारिता के नाम पर वो कोविड-19 महामारी के जो विक्टिम्स हैं उनको वो धर्म के आधार पर बांट करके वो जो है वो अपनी नफरत का जो कारोबार है उसको चला रहे हैं। सरकार जो बैठी हुई है उससे सवाल नहीं कर रहे हैं स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में, मजदूरों के बारे में, रोजगार के बारे में, स्वास्थ्य संकट के बारे में, PPE किट्स के बारे में, टेस्टिंग के बारे में कोई सवाल नहीं कर रहे, बल्कि नफरत का जो इंजन है उसमें तेल डालने का काम आप लोग किए जा रहे हैं। इतिहास आपको देखेगा, इतिहास आपको जज करेगा। और आपके जो साथ काम करते हैं और आपके जितने पत्रकार बंधु हैं, जितने लोग हैं जो पत्रकार हैं देश में, अगर आज वो इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते, अगर एडिटर्स गिल्ड नहीं उठाती, अगर आपके इंडिया टुडे के जितने कोलीग्स हैं, इज्जतदार कोलीग्स हैं, मैं इज्जत करती हूं उनकी, लेकिन अगर वो अभी आवाज नहीं उठाते तो इतिहास उन्हें भी जज करेगी, इतिहास उन पर भी छी कहेगी। पूरी दुनिया देख रही है और आपको इस समय आप क्या है, क्या आपने खुद नकाब उतार करके पूरी दुनिया को दिखाने का काम किया है। और ये बात जो है, मैं अकेले नहीं हूं इस बात को कहने में, मुझे पूरी उम्मीद है कि ढेर सारे और लोग इसी बात को आपसे कहेंगे।